I, Major Jayesh Verma, welcome you all on yet another episode of Value Talks. As you know, Value Talks is the platform created by retired army officers, namely Captain Vipul Chaudhary, Colonel Manish Kochar, and me, Major Jayesh Verma. We are here to give you advice in the fields which interest you, which interest your finance, which interests your health, as well as career. So, in the chain of talks, today we have a very interesting discussion. Today we will be going to discuss how you can leverage your property loans to gain maximum from them and to plan for your futures so as to make a huge corpus funds. To discuss this with us, we have Captain Vipul Chaudhary. He, as you might be aware about him, who are the out of few of you who might be repeated visitors. So Captain Vipul Chaudhary, after his stint in army, he is now a renowned real estate advisor and investment advisor. So welcome, Captain Vipul Chaudhary. Hi, Jeff. How are you? I'm fine, sir. Thank you. So today's discussion, as we have in our previous Value Talks editions, we have discussed about home loan, we have discussed about overdraft loan, and how it impacts, your investments, how you can save onto interest amount, and leverage that for your further growth. So how does this particular episode is different from those? What difference we bring on the table today? Today, I am not going to talk about home loans in the sense that what is loan as a product. That would be Shiv Yadav's area of expertise. I am going to talk about how leverage in an investment, especially in a long-term property investment, helps an investor improve his return on equity. Okay, so when we say financial leverage, so first I would like to understand, sir, what exactly are we talking about? What exactly is financial leverage? Can we start from that basic? Okay, I'll tell you three things. One, leverage. Leverage का बहुत ही simple meaning है when you use something as a lever to lift something. That is where leverage is used. Financial leverage का मतलब ये है कि हम लोन लेकर के, कर्जा लेकर के और अपना किसी भी तरह का व्यापार या इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको फाइनेंशियल लेवरेज बोलते हैं. टिपिकली ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जैसे कि बैंक्स या एनबीएफसीज, ये लोग फाइनेंशियल लेवरेज का बिजनेस करते हैं. ये डिपॉजिटर से एक सर्टेन अमाउंट से पैसा लेते हैं और उससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आगे दे करके और अपना बेनिफिट करते हैं. सो दैट इज फाइनेंशियल लेवरेज. इन इन्वेस्टमेंट हाउ दिस वर्क्स इज, लेट्स से आप एक 100 रुपए का एसेट खरीदना चाहते हैं, बट आपके पास अपने 20-30 रुपए हैं, बचा हुआ 70-80 रुपया आप किसी से उधार लेकर एसेट में लगाते हैं. सो दैट बिकम्स फाइनेंशियल लेवरेज फॉर यू. जी, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो हमने एक वेबिनार किया था मिस्टर जितेंद्र चौधरी, शिव यादव के साथ, सॉरी, हमारे जो लोन एक्सपर्ट है, जिसमें के जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज जो होम लोन पर some banks are providing and how we can leverage that. So that is also ultimately one way of financial leveraging, isn't that? तो आप रियल एस्टेट में या प्रॉपर्टी में लेवरेज का सीधा सा मतलब ये समझिए कि जब आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई प्रॉपर्टी लोन लेते हैं, चाहे होम लोन लेते हैं घर खरीदने के लिए या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी का लोन लेते हैं या जमीन खरीदने के लिए कोई लैंड का लोन लेते हैं, ऑल दैट इज फाइनेंशियल लेवरेज. ओके, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं. मैं जानना चाहूंगा, एक्चुअली आई एम ऑलरेडी यूजिंग as we have already discussed in our previous webinars, I'm financially literate, I can say, and I'm already using few of these facilities. But this is very interesting when we say, or when we think के 10, 15, 20, 25 लाख के फाइनेंशियल लिवरेज से क्या कितनी प्रॉपर्टी या कितनी अर्निंग हम कर सकते हैं. ये इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो. तो आगे बढ़ते हैं. When we say financial leverage, how does it impacts my return and how does it work?
that is basic knowledge. That is basic knowledge we have, that we can obviously use that, but isn't it comes with some risk involved? पहले मैं आपको दिखाता हूँ हाउ इट वर्क्स. आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल एक्सेल के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस, Sure. and then based on that you can take it from there. Okay. Yes, sir. Please. मान लीजिए हम एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसकी कॉस्ट है 50 लाख रुपए. जी, ये हम रेसिडेंशियल ऑब्लिक कमर्शियल, ये बोथ? I made a very generalized this thing. Okay. It can be residential, it can be commercial. उसमें थोड़ा बहुत फर्क होगा, but this is a general discussion. Okay. So in 30-year ownership की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, wherein the present cost of the property is 50 lakh rupees. आप अपना 10 लाख रुपए उसमें लगाते हैं जी, और 40 लाख रुपए का लोन लेते हैं. As of today, the rate of interest of a home loan is 8%. So let's assume this is a residential property. Okay. तो आप अगर 30 साल का लोन लेते हैं, आप 40 लाख पर 65 लाख रुपए का ब्याज देंगे जी, at the rate of 8%. जी, रेंट अगर आप आज 1.5% के हिसाब से रेंट लगाते हैं, अगर आज आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी ली, आपको सालाना 1.5% विच इज 75,000 रुपीज पर ईयर या 6,250 रुपए का रेंट आपको हर महीने 50 लाख की प्रॉपर्टी पर स्टार्टिंग रेंट मिलता है. जी, वो हम मिनिमम की बात कर रहे हैं. हाँ, मैं इसी को जो प्रिवेलिंग है 1.5 से 2% ही रेंट मिलता है, और जी. मतलब इसको इन्फ्लेट करने का कोई मतलब नहीं. ओके. तो अगर मैं 75,000 रुपए साल आज से लगाता हूँ और इस रेंट को मैं 10% का सालाना इंक्रीमेंट देता हूँ, जी, तो 30 साल में मेरे को 120 लाख या 1,20,00,000 रुपए का रेंट इस प्रॉपर्टी से मिलेगा. जी, इसी तरह से अगर मैंने 40 लाख का लोन लिया है, तो अगले 15 साल में मैं टोटल टैक्स की बचत लगभग 10 लाख रुपए कर पाऊंगा. इसका मतलब ये नहीं है कि साल का 2 लाख रुपए का जो मैं ब्याज पे करूंगा, उस पे मेरे को टैक्स सेविंग होगी लगभग 66,000 रुपीज. ओके. Assuming that the person who is taking this loan is in the topmost tax slab, और वो अगर 40 लाख का लोन ले रहा है, तो assumption is fairly there कि 40 लाख का लोन उसी को मिल पाएगा जो ऑलरेडी महीने का 1.25 लाख के आसपास का इनकम कर रहा है. सो वो 33% सरचार्ज वगैरह लगा के उस टैक्स स्लैब में है. तो अगर 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे होता है टुवर्ड्स अ प्रॉपर्टी लोन एंड दैट गेट्स रिड्यूस्ड फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम, your net tax saving is around 66,000 rupees. Yes. Over a 15-year period, that works out to around 10 lakh rupees. Correct. लोन हालांकि 30 साल का है, बट मैंने टैक्स सेविंग 15 ही साल तक अज्यूम करी है. Understood. क्योंकि Because of उसके tax बाद क्या rate. That is one. बाद में ब्याज की राशि कम होती जाती है, तो आपको वो उतनी टैक्स सेविंग्स मिलती नहीं. जी. सो therefore the tax saving, उसके बाद अगर आप इस प्रॉपर्टी को 30 साल रख रहे हैं और आपको 1,20,00,000 रुपए का रेंट मिला, तो ऐसा नहीं कि सारा रेंट आपको मिल ही जाएगा. आपको प्रॉपर्टी की अपकीप के ऊपर भी पैसा लगाना पड़ेगा, उसकी कहीं मेंटेनेंस टूट फूट भी करनी पड़ेगी, बीच में आपको रेंट पे चढ़ाने का अपना ब्रोकर को भी एक्सपेंस देना पड़ेगा. सो मैंने 120 लाख 1.25 करोड़ में से 1/3 उसके लिए हटा दिया. जी. जो भी आपको रेंट मिलेगा उसमें से 30% और rather to say 33% towards the other expenses has been removed towards the expense of upkeep of the property. Okay. And what about the depreciation of the property meanwhile? Will we talk about that? Real estate का जो construction है, that typically will withstand for a 50-60 year period. Okay. So depreciation as such इस कैलकुलेशन में लाने की जरूरत नहीं होती है. रीजन वहां पे अगर हम एक तरफ से बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है, तो दूसरी तरफ से एफएआर बढ़ भी रहा होता है. Yes. That increase in FAR more or less offsets the depreciation which might be happening for the building. Okay. ये जो आपने अपने पीछे हाई राइज बिल्डिंग का फोटो लगाया हुआ है, ये बिल्डिंग को जब बनाया गया तो इस तरह से बनाया गया कि ये 50 से 60 साल सस्टेन करेगी. अदरवाइज इस बिल्डिंग का जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो
जो है वो मोनेटाइज नहीं हो पाएगा प्रॉपर्टी. Understood. So 90 lakh rupees is the net return from rent and tax saving over the 30-year period. Mhm. और नीचे आते हैं. अब अगर ये प्रॉपर्टी 50 लाख की प्रॉपर्टी अगले 30 साल में 15% एनुअलाइज कंपाउंडेड ग्रोथ रेट होगा, तो इसका प्राइस आफ्टर 30 इयर्स वुड बी 28 CR. Okay, 30 years we are talking about. Okay, so 30 we are years, talking about 20, almost 2050s. 2052 आज से. Yes. यही अगर 12% पर कंपाउंड होता है, so then the price would be around 13 CR. Mhm. And third is if it compounds at 8 crore, then the price would be around, if it compounds at 10% compounded annual growth rate, then the price would be around 8 crores. Okay, and for this minimum calculation of 8 crore, we have contributed 10 lakh rupees. 10 lakh. उस पर हम आ रहे हैं. Okay. अब आपने 30 साल बाद बैंक को आपने टोटल 1 करोड़ 5 लाख रुपया दिया वापस. Yes. 40 लाख आपने जो And मूलधन 65. लिया था Yes. वो, और Yes. 65 लाख जो आपने लोन लिया था वो, जी. लोन का ब्याज. सो 40 जी. लाख मूलधन राशि, 65 लाख आपका ब्याज. Mhm. So now, if it has compounded at a rate of 15%, your net in hand is 26 crore 95 lakhs. Understood. At 12%, net in hand is 11 crore 95 lakhs. At 10%, net in hand is 6.9 crore. उसमें 90 लाख रुपए जो आपको रेंट और टैक्स सेविंग वाला आया, वो आपने ऐड किया तो यार फिगर्स गेट 1 करोड़ रुपए का आपको उसमें इंक्रीज मिल जाता है, आपके नेट इन हैंड में इजाफा मिल जाता है. Mhm. सो अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, बिकॉज आपका जो एक्चुअल पैसा लगा वो आज की डेट में 10 लाख रुपया है. जी. Rest you have taken a loan, you have paid the loan, as well as you have paid the interest on the loan back to the bank. Yes. So your actual money is 10 lakh rupees. अगर हम 10 lakh rupees के ऊपर return on equity की बात करते हैं, so then your return on equity, or if your return on investment has been 15%, then Okay. your return on equity is 21%. If your return on investment has been 12%, the return on equity has been 18%. If Okay. your return on investment has been 10%, still the return on equity is 15.5%. So what leverage essentially does is, अगर आपने सही प्राइस की प्रॉपर्टी या सही प्राइस का कोई लेवरेज क्रिएट किया है, तो वो अब उसको कॉस्ट ऑफ मनी तो आपको 8% है, जी. और आपको कैपिटल एप्रिसिएशन उससे ज्यादा मिल रहा है. Yes. सो एज अ रिजल्ट जो 70, 80, 90% पैसा आपका नहीं था, जो आपने कर्जा लिया, आपने उसके ऊपर भी पैसा कमाया. Understood. इसमें अभी हमने वो कैलकुलेट नहीं किया है कि अगले 30 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, और वो होगा ही होगा. जी. अभी भी जो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये इसलिए है बिकॉज रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट्स को हाइक किया इन्फ्लेशन Yes. को कंट्रोल करने के लिए. Yes. तो Yes. जैसे इन्फ्लेशन के फिगर्स वापस से थोड़ा सा कंट्रोलेबल Stable. आते हैं, Obviously. रेपो रेट वापस से कम होगा, तो ये 8% वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको अगले 1 साल में वापस से 7% दिख जाए. Yes. और जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, टुडे लेट्स से वी आर $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, अगले 10 साल में अगर हम $6 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे, इवन इफ वी आर ग्रोइंग एट अ 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमिकली, तो आपका कॉस्ट ऑफ मनी ऑटोमेटिकली 1 to 1.5% कम हो जाता है, बिकॉज उतना ज्यादा कैपिटल इकोनॉमी में आ जाता है. बैंक्स हैव दैट मच मोर कैपिटल टू लेंड. So Yes. naturally, over a period of next 30 odd years, the rate of interest at which you are raising a loan today वो लगातार कम होता रहेगा, which implies कि आप लास्ट में 65 लाख रुपए का कर्जा इंटरेस्ट नहीं देंगे. Your interest component would be somewhere around 40 odd lakh rupees. Even if you do not make any prepayment, even if you do not make any payment before the due date, आप बिल्कुल इसको exactly भी चलाएंगे तो भी rate of interest कम होने की वजह से this loan will actually get paid off in around 22 odd years. जी, लेकिन विपुल सर सबसे बड़ा सवाल ही रेट ऑफ इंटरेस्ट का है एक्चुअली, बिकॉज द फियर ऑफ दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट और द ईएमआई, दैट कंसिस्टेंसी हैज टू बी मेंटेन्ड to get even close to what you're saying.
So the fear of rate of interest or the EMI, how do we go about it? You know, सबसे एक ही तो सबसे बड़ा डर है कि क्या मैं वो EMI की liability कैरी ऑन कर सकता हूँ, तो इस डर से कैसे निकले? ये डर तो भाई आपको अपने आप ही देखना पड़ेगा कि आर यू टेकिंग अ लेवरेज विच यू कैन fulfill, because naturally you are taking an obligation. Yes, Okay. Property loan is the cheapest loan available in the market. yes, that is true. Whether it is commercial property, it is residential property. और वो cheapest इसलिए है because बैंक को उस लोन के अगेंस्ट में एक एसेट मिल जाता है which is a marketable asset. Yes, That is the only reason why they give it to you at an attractive rate of interest and for that longer duration. 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल. yes, इसके अलावा ऐसा कोई रीजन नहीं है कि बैंक को कोई प्रॉपर्टी लोन देने में एक्स्ट्रा कमाई हो रही है. उनकी क्योंकि खर्चे कम हैं और उनके मतलब उनका रिस्क कम है और उनको एक एसेट बैक्ड सिक्योरिटी मिलती है जिसका रेट बढ़ता जाता है. सो दे आर मोर कंफर्टेबल और उनके रिस्क असेसमेंट में इट इज अ सेफ लोन. एज अ बोरोवर यू शुड आल्सो बी वरीड अबाउट द फैक्ट कि आप इसको दे सकते हैं, रीपे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. वो चीजें आपको जरूर अपने ध्यान में रखनी चाहिए. बट द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक हियर कि हम अगर इसको अच्छे से इस्तेमाल करें, सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल विच यू कैन यूटिलाइज फॉर क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग बिग एसेट फॉर योरसेल्फ. आई मीन इससे अनुशासन भी आता है ना, बिकॉज यू yes, हैव yes, you get that obligation आ गई ना आपके ऊपर कि मुझे पे करना. yes. Yes. So although we have discussed in our previous webinars regarding, I mean, the pros and cons of residential as well as financial, but for the sake of today's discussion, what is your suggestions or what are your views? Let's say if somebody like me who has already purchased a house, who has settled, who, you know, one major requirement of any individual is fulfilled. Now I have some corpus which I can, you know, utilize for let's say working on your plan. So what do you suggest? What do you suggest people like me who's got no liability as far as home construction or a house is concerned? Where should he go? Is it like we should go in? आप अपना असेसमेंट करवाइए कि आपको किस तरह का लोन मिल सकता है और कितना आप अपना इक्विटी लगाएंगे. उसके बाद उसको इस्तेमाल करके एक प्रॉपर्टी लीजिए और इम्पैक्ट क्या रहेगा प्रॉपर्टी का लोन का आपके रिटर्न्स के ऊपर. वन, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल रिड्यूस, ईएमआईज विल बिकम स्मॉलर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या टेन्योर कम हो जाएगा. रेंट आपका बढ़ता रहेगा. मैंने 1.5% से स्टार्ट किया है. Yes. और आपको टैक्स मिलेगी तो आपका जो आज 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इफेक्टिवली 7% के आसपास वर्कआउट करेगा. Yes. एंड No, कैपिटल sorry to interrupt you, but what I was trying to hint at कि मैंने जैसे घर तो ले लिया है, तो क्या मैंने दोबारा कोई जो इन्वेस्टमेंट है मेरी घर में, अपार्टमेंट में, फ्लैट में, इंडिपेंडेंट हाउस में करूं मैं, वो ज्यादा फायदेमंद होगा इस कैलकुलेशन के हिसाब से, या कमर्शियल में करूं? बिकॉज इस कैलकुलेशन का ऐसा नहीं कह सकते कि इससे ज्यादा फायदेमंद होगा, उससे ज्यादा फायदेमंद होगा. वो आप प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी एसेस कीजिएगा. डू नॉट हैव अ जनरलाइज दिस थिंग. जिस प्रॉपर्टी का आपको फेयर प्राइस मिल रहा होगा वो आपको फायदा करेगा. अंडरस्टूड. अब इसमें आपने पूछा था कि मेरे को डर, तो उसमें गलत क्या हो सकता है, मैं वो आपको बता देता हूँ. व्हाट कैन गो रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ टेकिंग अ लेवरेज. और आपने जो पूछा आपको कि कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए आपको, पहले उस सवाल का जवाब दे देता हूँ. सबसे पहले तो जो प्राइस ऑफ द एसेट है उसको आप जो भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं बहुत महंगी ना खरीदें. ओके. सो बी वेरी श्योर दैट यू आर बाइंग अ फेयर प्राइस एसेट. ओके. दूसरा, मार्केटेबल टाइटल. मैंने से मार्केटेबल टाइटल, कई बार बिल्डर जो है शुरू में आपको प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, लंबे चौड़े वादे कर रहे हैं और वो बीच में प्रोजेक्ट फंस जाएगा. आपका जो है वो टाइटल मार्केटेबल हो गया तो प्रॉपर्टी का दाम नहीं बढ़ेगा. अगर प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट आ गया, प्रोजेक्ट का डिले का मतलब है प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट. ओके. सो दैट मींस यू विल नॉट बी एबल टू गेट द प्राइस और द एप्रिसिएशन व्हिच यू आर लुकिंग एट. थर्ड, बिफोर मेकिंग अ इन्वेस्टमेंट, even though when you take a loan the bank will have done its due diligence, but आप भी कीजिए अपना due diligence.
आप Yes. बेसिक आसपास के एरिया का प्राइस, उस प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, उस प्रोजेक्ट, उस बिल्डर की पुरानी रेपुटेशन क्या है, और हो सके तो रेडी टू मूव इन या क्लोजर टू रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज। जी। बाकी आप इसको चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए लें या रेजिडेंशियल के लिए, आपके रिटर्न्स अगर आपने ठीक सा इन्वेस्टमेंट किया है तो मोर और लेस, आई मीन, if you are actually able to find a good property which is ready and which has a fair value or lesser than fair value, मार्केट का प्राइस 100 रुपए, आप 90 रुपए में खरीद पाते हैं, तो नेचुरली आपका प्रॉफिट बढ़ जाए। Obviously. गलत इसमें क्या गलतियां क्या हो सकती हैं, वो मैं आपको जो अक्सर देखा जाता है मार्केट में, जो आपने सोचा कि इस स्पीड से डेवलप होगा, वो आपका कई बार रेट ऑफ डेवलपमेंट वीक हो जाता है। जैसे गुड़गांव के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे पिछले 8 साल से बन ही रहा है, लोग अभी तक जी। प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। जी। तो उन्होंने 8 साल पहले, 7 साल पहले, 6 साल पहले जो उस भाव में प्रॉपर्टीज खरीद ली, वो अभी। वो आज बहुत ज्यादा पेन महसूस करते हैं, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो बन नहीं रही है। प्रॉपर्टी बन भी गई है तो रोड नहीं बन रहा है, एक्सेस नहीं मिल रहा है, और उनका दाम उस तरह से नहीं बढ़ रहा है जैसा उन्होंने उम्मीद करी। जी। सो वो वाला जो पीरियड है, उसमें एक अपने अंदर बर्दाश्त डेवलप करना और ये सोचना कि भाई ये बढ़ेगा और तब मुझे पुराने वाली जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। दूसरा, प्रोजेक्ट फंस सकता है अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ले रहे हैं, अच्छे से अच्छे बिल्डर का फंस जाता है। सो इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना जरूरी है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा। ओके। वो बट इसके लिए वो- एक आम आदमी कर भी क्या सकता है? क्योंकि अगर मैं किसी नाम, टाइटल, ब्रांड के चलते अगर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहूँ, और एक ड्यू डिलीजेंस का पार्ट मेरे समझ तो आती है कि भाई ड्यू डिलीजेंस तो करनी है आपने इन्वेस्टमेंट से। इस पे चर्चा करेंगे जयेश। आई विल होल्ड अ टॉक कि आप अगर प्रोजेक्ट में फंस गए तो क्या करें और ओके। अपने आप को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी, लेकिन अभी के लिए कोई अभी एक के ट्रेलर। लिए that's a very long discussion again, but I'll definitely come back to the viewers on this, that if you're stuck in a project, what should be done. ओके, दैट विल बी ग्रेट फॉर आवर व्यूअर्स। थर्ड है, अगर आप बहुत तेज दाम पे प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं हम्म। तो होता क्या है कि आपको जो नफा मार्केट से मिलना चाहिए था वो 7-8 साल तो उसी में निकल जाएगा। आपने ऑलरेडी बाजार का फ्रंट प्रीमियम दे दिया है। जी। So if you have purchased a property at a very high price, then naturally your returns will not be that handsome. चौथा, एक ओके। प्रॉब्लम ये हो सकती है जिसने प्रॉपर्टी ली है, उनको अगर कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ जाए, नौकरी चली जाए, बीमार हो जाए कुछ, या व्यापार में नुकसान हो जाए, तो इसके लिए नेचुरली आपको लेवरेज उतना ही लेना चाहिए कि इस तरह की टेम्परेरी अगर कोई बीच में परेशानी आती भी है तो आप ओके। उसको टाइड ओवर कर सकें। ओके। ओके। yes, this तो this this is answers what- my question, because वही है कि एक डर के what will happen if you lose your source of income for whatever reasons, so this answers me. Okay. तो वो मैनेज करके आपको लेवरेज लेना चाहिए, इतना भी ना ले लें कि भैया अगर किसी वजह से 4-6 महीने नौकरी चलेगी, आप प्राइवेट सेक्टर में करते हैं नौकरी, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट में है, फौज में है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जी। प्राइवेट सेक्टर में, जिससे आप हैं, यू आर नाउ इन प्राइवेट सेक्टर, so you yes. should be prepared कि if I am not able to work for 4-6 months due to any reason, I should have that much of cash kept aside for being able to repay the liability which I have taken. जी। तो इट्स एक्चुअली सिंपल, एक छोटी सी कहावत है, जितनी चादर है उतने पैर फैलाइए। तो अपने कैलकुलेशंस लेवरेज में आप थोड़ा सा पैर ज्यादा फैला रहे हैं। जी। बेसिकली जी। लेवरेज में आप दूसरे आदमी से पैसा ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं अपना एसेट क्रिएट करने के लिए। श्योर। यस। सो देयर इज So, डेफिनेटली रिस्क, वो रिस्क आपको कैलकुलेट करना है। yes. So I have understood, Vipul sir, that what leverage means, and actually I'm leveraging right now in a way, but obviously I would love to go ahead and shop for more option for leveraging such for earning and planning for different pipelines of earnings. Let me request you all that we are putting our efforts, we are collecting the experts from different sections and different fields for you, so as to make you aware. A simple thing you have to do to help us is to simply join our YouTube channel, subscribe it, like it, and share it. We are doing it in goodwill for all of you, and we will keep doing it.
gotta focus on your